تھوڑی سی ٹینشن دیجیے گا، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، ہم نے 12 بجے تک میٹنگ کو کلوز کرنا جی بھائی صاحب، تو اس لیے جتنی بھی باتیں ہم کریں ہم سنیں، آپ غور کیجئے گا۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، متی کی کتاب اس کا 28 باب 19 تا 20 آیت ہم دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرحوم ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ بڑی خوبصورتی سے خدا کا بندہ اس بات کو لکھتا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ۔ اب ہم اس بات کو سوچیں گے کہ ہم کیسے شاگرد بنائیں، ہم تو استاد نہیں بنے، لیکن میرے عزیزو ہمیں یہ چانس دیا جا رہا ہے۔ آپ رویا زمین پہ ہیں، آپ بھلے ہی ٹیچر نہیں ہیں، لیکن آپ خدا کا کلام سنتے ہیں۔ آج آپ نے خدا کے کلام کی آواز کو سنا ہے۔ خدا کا کلام بڑی خوبصورتی سے بتا رہا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب سوچ کی بات یہ ہے کہ کیا میں نجات یافتہ ہوں؟ یہ سب کے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے ان کے لیے ہے، جنہوں نے نہیں لیا کلام کو ہم نے سن لیا ہے، لیکن اس بات کو جاننے کے لیے کہ کیا میں نجات یافتہ ہوں؟ اگر میں نجات یافتہ نہیں ہوں تو میں کسی کو بھی انے کو راہ نہیں بتا سکتا۔ کہ بتا سکتا ہے؟ نہیں، وہ دونوں ہی محتاج ہے کہ ان کو کوئی تیسرا شخص آ کر ان کا ہاتھ پکڑے، ان کو روڈ کراس کرا دے یا گلی میں سے گزارے یا جیسے بھی۔ اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، لیکن خدا کا کلام آج ہمیں بڑی خوبصورتی سے اس بات کی وضاحت دیتا ہے کہ پس تم جا کر۔ اب ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی جائیں، ہم بھی پہلے شاگرد بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ شاگرد بن جائیں، سیکھیں جا کے وہ بات جو خداوند نے کی۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسا وہ کرتا تھا وہ سکھاتا تھا۔ پہلے ہی باب میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھ دی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو پورا کر کے دکھایا۔ آج جتنے لوگوں نے خداوند کی اس راست بازی کو پورا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ باعث برکت لوگ ہیں۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے بپتسمہ یہ کہاں سے نکلا ہے۔ یونانی یعنی کہ گریک لفظ جو ہے یہ بیپتیزو ہے۔ کیا لفظ ہے؟ بیپتیزو۔ یہ لفظ یونان کے جو لوہار تھے ان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لوہار دیکھیں میری یہ پنڈا تو ہماری لوہار بیٹھے ہیں جو لوہے کو سیدھا کرتے ہیں۔ اب اس بات کو جانے، یہ نالج کی بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ جب لوہا کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے چھری بنانی ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی پتری لینی پڑے گی، اس کو گرم کرنا پڑے گا، گرم کرنے کے بعد اس کو خوبصورت ہتھوڑے سے کوٹنا پڑے گا، اور کوٹنے کے بعد جب اس کی شیپ تیار ہو جاتی ہے اسے ایک دم سے پانی میں ڈبو دینے کا مطلب بیپتیزو ہے۔ یہیں سے انگریزی میں لفظ بیپٹزم نکلا ہے، پھر اردو میں اسے استعمال کہا گیا ہے، یعنی بپتسمہ۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ پروسیس جو ہے، عمل جو ہے، اس کو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی لوہار کام کرتے ہیں
वो इस प्रोसेस में से होके गुजारते हैं उस चीज को जो हमारे दरमियान में होती है। मिसाल के तौर पर कोई भी बर्तन बनाना है, कोई भी ऐसा काम करना है, लोहे को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया तो सही, फिर ही कहीं जाके शेप तैयार होती है और वो औजार तैयार हो जाता है जो हमारे तक पहुंचता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी के लिए भी ये बात है, हमें भी उस प्रोसेस में से गुजारा जाता है। गुनाह की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी है, गुनाह की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यानी कि हम सब गुनाहगार हैं। जब तक हम तौबा नहीं करते, इकरार नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह किस लिए दुनिया में आया, खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दुनिया में आया। मेरे दोस्तों, आज बहुत खूबसूरती से इस बात को लिख दिया गया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि जिन्होंने अभी तक खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, ये उनके लिए है। जिन्होंने कर लिया है, मैं समझता हूँ कि लाखों फरिश्तगान जो है आसमान पर आज जश्न मना रहे होंगे कि आज देखो एक बड़ी खूबसूरत जमात खुदावंद यीशु मसीह के पास आई है, जिन्होंने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा मुकद्दस में बड़ी खूबसूरती से, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस रास्ते वहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि आसमान जो है वो खुल गया। क्या हुआ? आसमान खुल गया और कबूतर पाक रूह की शक्ल में खुदावंद पे आके ठहरा और एक खूबसूरत आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आज जितने बच्चों ने, बड़ों ने इस बात को जाना है कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है, वही मुझे बचाने वाला है, वही मुझे छुड़ाने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि उसने अपने फर्जंद होने का हक हमें बख्श दिया, अपने बेटे और बेटियां बना लिया। और फिर आसमान से आवाज आती होगी कि आज ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसने आज मेरे नाम को जाना है, जिसने आज मेरे नाम को पहचाना है कि मैं ही निजात देता दहिंदा हूँ। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। इसका मतलब है कि हम खोए हुए हैं। जब तक हम खुदावंद को कबूल नहीं करते, हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, हम खोए हुए हैं। भले ही हम अपने रिश्तेदारों में हैं, बहन भाइयों में हैं, नातेदारों में हैं, लेकिन अजीजों इस बात को जान लें, कलाम कहता है कि वो खोए हुए हैं, उनकी खुदा से कोई वाक़ियत नहीं है। वो भले ही आर्थिक तौर पर चर्च में आके बैठते हो और फिर बाहर चले जाते हो, फिर वही काम जो उनका दोस्त करता है, इब्लीस जो काम करता है वही काम है। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें ये बताता है कि खुदावंद ही निजात देता है और वो हमें ढूंढने के लिए आया है, हमें निजात देने के लिए आया है। आज हमने इस बात को भी जाना है कि बपतिस्मा क्या है और हमें किस उम्र में। हाँ, एक बड़ा खूबसूरत सवाल अक्सर नोट करते हैं और आपकी इत्तला के लिए बता देना चाहता हूँ, पुराने अहदनामा में बपतिस्मा के ताल्लुक से कोई बात नहीं लिखी है। सारी बातें 87 हवाला जात जो हैं वो बपतिस्मा के ताल्लुक से हैं और वो नए अहदनामा में है। कौन? बनी इसराइल का भी बपतिस्मा हुआ मूसा के वसीला से, जब ज्यादा तादाद बच्चों की और औरतों की थी। उसमें 6 लाख, बाइबल मुकद्दस बताती है 6 लाख सिर्फ मर्द थे और 20 लाख की तादाद थी उन लोगों की। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 20 लाख।
खुदावन ने यकमुश्त सबको बपतिस्मा दे दिया मूसा की वजह से, पानी का बपतिस्मा हुआ। अब बताना चाहता हूं कि नूह का घराना पानी की मुशाबत, पानी के वसीला से वो घराना बचा। हमने भी बपतिस्मा लिया है पानी में, अपने आप को मारकर जिंदा हो गए, खुदावंद के मुशाबा हो गए। अब जब खुदावंद ने आना है उसने हमें जिंदा करना है। हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम निजात याफ्ता हो गए हैं। बताना चाहता हूं अजीजों, ईद पेंतिकोस्त के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। यकमुश्त कितनी तादाद। आज हम सोचते रहते हैं ओहो मैं बपतिस्मा लाऊंगा। एक दफा हम एक ऐसे ही बपतिस्मा देने के लिए चर्च में जमा हुए, वहां एक भाई आ गया, उसके अंदर इब्लीस आ गया। वो डर रहा है, हौस को जब उसने देखा, नहीं भाई साहब मैं डूब जाऊंगा, मैं भाई साहब डूब जाऊंगा। मैं कहा यार तुझे कुछ नहीं होता। इब्लीस उसे बार-बार फोर्स कर रहा था कि ना तू बपतिस्मा ना ले। ये बात सुन ले आप, इब्लीस रोकता है हमें तौबा करने से, माफी मांगने से, इकरार करने से। इब्लीस बारहा हमें स्टॉप 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 कहता है, ना पुत्र जे तू है कर लिया तो फिर काम गलत हो जाएगा। मैंने पूछा भाई साहब आपको क्या वजह है, क्यों आप आ तो गए हैं चर्च में, अब क्या वजह होगी? कहता भाई साहब जे मैं बपतिस्मा ले लिया तो गाना कौन कटेगा, जे मैं बपतिस्मा ले लिया तो शराब कौन पिएगा, नस्वार कौन खाएगा, लड़ाई झगड़ा कौन करेगा। मेरे अजीजों, आज जब हम खुदावंद को पहन लेते हैं, बपतिस्मा लेने का एक मतलब है खुदावंद को पहन लेना। इस बात को जानने कलाम मुक़द्दस में लिखा है। अब मैं चाहूंगा कि चंद एक बातें उनके लिए जिन्होंने खुदावंद को अपना दिल दे दिया है, तौबा कर ली है, अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, वो इस बात को सुन ले कि आप वो खुदावंद में नए मखलूक बन गए हैं। एक नई जिंदगी उन्होंने हासिल कर ली है, नई पैदाइश का तजर्बा उनको हो गया है, तो वो पुरानी बातों को तर्क कर दें। अब वो पुरानी जिंदगी को कभी पीछे मुड़ के ना देखे कि मेरी जिंदगी कैसी थी। अगर कोई आपकी जिंदगी में ऐसा मुकाम आ भी जाता है तो उसे मेहरबानी से दरगुजर कर दीजिएगा, गुस्से को अपने करीब ना आने दीजिएगा, ताकि ऐसी कोई बात मुंह से ना निकले जो दूसरों के लिए ठोकर का बायस हो। जो भी कलाम में लिखा है, काम या कलाम जो भी करो ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हैं। बातें बहुत सारी है, वक्त थोड़ा है, अभी शराबानी भी है, तो मेहरबानी से मैं समझता हूँ कि आज हमने जितनी भी बातें खुदा के कलाम से सुनी हैं, हम इनको अपने साथ लेके जाएं और अपने आप को जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो तैयार करें, क्योंकि बपतिस्मा के वसीला से हम, मेरे जिंदगी सुन ले, बपतिस्मा जब हम ले लेते हैं तो फिर हम आम नहीं रहते, हम खास बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं जी? खास। पहले आम लोग हैं, आम की कोई वैल्यू नहीं होती, आम सादा कुछ भी नहीं, आम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं खुदा का खादम हूँ तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं खासों में हूँ। हम ऊपर बैठते हैं, ये ना समझें कि आप नीचे बैठते हैं तो आप आम में नहीं, आप खुदा का कलाम सुनने आए हैं, कलाम सुन रहे हैं, जो उस पर अमल करता है आप मुबारकबाद हैं, मुबारकबादी के हकदार हैं। खुदा चाहता है कि मेरे लोग सब जो है वो खास बन जाएं, आम ना रहे। क्या बने? खास, क्योंकि दुल्हा आसमान पर से आने को है और जो दुल्हन है वो खास होती है, जो कलीसिया है वो दुल्हन है, वो खास हो। और जो हैकल में बर्तन रखे जाते हैं वो आम बर्तन नहीं होते, वो खास होते हैं। इसलिए आप भी खास हैं, आप खास बने। कोशिश करें कि खुदा तू मुझे कबूल कर, मैं अपनी गुनाहों, गलतियों और खताओं की माफी चाहता हूँ, माफी चाहती हूँ। खुदा तू मुझे भी अपना बेटा बना, बेटी बना, ताकि आसमान से आए आवाज कि ये मेरा प्यारा बेटा है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।
हालेलुया। जोरदार तालियां हो जाएंगी।